Hey everyone, this is Ritika Sharma and now we are going to start part 5 of the chapter Long Walk to Freedom, Nelson Mandela. So student, as we were reading about this, man's goodness is a flame that can be hidden but never extinguished. Man की जो goodness है, person की जो human being की जो goodness है, अच्छाई है, वो एक flame की तरह होती है जिसे छुपाया तो जा सकता है लेकिन कभी बुझाया नहीं जा सकता है. So in life every man has twin obligation. Life में हर person के, हर man के, ठीक है, twin obligation होते हैं, दो duties होती हैं. वो duties कौन सी है? First is obligation to his family, to his parents, to his wife and children. And first obligation होता है, first responsibility होती है to his family, towards his family, towards his parent, towards his wife and children. And the second obligation, he has an obligation to his people, to his community, to his country. So और जो second obligation होता है, second responsibility होती है, वो कौन सी responsibility होती है? अपने देश के लोगों के लिए, अपनी community के लिए, अपनी country के लिए. In a civil and human society, each man is able to fulfill those obligations according to his own inclination and abilities. हमारी जो सोसाइटी है, हमारी जो कंट्रीज है, वर्ल्ड में जितनी भी कंट्रीज है, वहाँ पे ये जो दोनों ऑब्लिगेशन है, एवरी पर्सन फुलफिल्स इट, राइट? But in a country like South Africa, it was almost impossible for a man of my birth and color to fulfill both of those obligations. Now he is saying कि every person who belongs to different countries can fulfill twin obligation, can fulfill both obligation, both responsibilities. But in South Africa, मेरे जैसे लोग और मेरे जैसे कलर के लोग दोनों obligations को fulfill करने में totally impossible है. क्यों impossible है? Because there was a rule of white supremacy. And in South Africa, a man of color who attempted to live as a human being was punished and isolated. So यहाँ पे वो बता रहे हैं कि मेरे जैसे लोग जो भी अपने दोनों obligations को पूरा करने का काम करते हैं, उनको क्या किया जाता है? करने की कोशिश करते हैं, अटैम्प्ट करते हैं, तो उनको क्या कर दिया जाता है? वो एज अ ह्यूमन बीइंग रहने की कोशिश करते हैं तो उनको पनिश कर दिया जाता है और इवन उनको आइसोलेट कर दिया जाता है. आइसोलेट मतलब कि उनको उनकी फैमिली से अलग कर दिया जाता है. So in South Africa, a man who tried to fulfill his duty to his people was inevitably ripped from his family and his home and was forced to live a life apart. So कोई भी जो इंसान है जो कि उनके बर्थ से या फिर उनके कलर से रिलेटेड है, मतलब कि ब्लैक पीपल जो है, अगर वो अपनी कंट्री के लिए, अपने कंट्री के लोगों के लिए कुछ भी करने की कोशिश करते हैं तो उनको उनकी फैमिली से छीन लिया जाता है, उनको उनके बच्चों से छीन लिया जाता है एंड इवन उनकी जो लाइफ है उनको पूरी तरह से अपार्ट कर दिया जाता है, अलग कर दिया जाता है. एंड ऑल्सो a twilight existence of secrecy and rebellion. And then he was saying कि जब हमको अपार्ट कर दिया गया है हमारी अपने हमारी फैमिली से, हमारे बच्चों से, मेरी वाइफ से, जिससे भी हमको अपार्ट कर दिया गया है, अलग कर दिया गया है, आइसोलेट कर दिया गया है, now he has generated a feeling of rebellion. Rebellion means क्या होता है? जो कि सिर्फ लड़ना चाहता है अपने राइट्स के लिए. That was the rebellion, all right? So उनमें एक rebellion की जो उनमें एक जो rebellion है वो जगने लग गया था. And the existence of a twilight existence of secrecy, मतलब कि उनकी जो सहन करने की जो क्षमता हो रही थी ना, जो कैपेबिलिटी हो रही थी, कैपेसिटी हो रही थी, that was totally decreasing. and उनमें जो फाइटर था that was increasing day by day. I did not in the beginning choose to place my people above my family. Starting में he was saying कि at the beginning he didn't choose their people, their country over the फैमिली. उन्होंने कभी कंट्री को और जो उनके पीपल है उनको प्रायोरिटी नहीं दी. उन्होंने सबसे पहले अपनी प्रायोरिटी दी थी अपनी फैमिली को. बट इन अटेम्प्टिंग टू सर्व माई पीपल, लेकिन अपने लोगों की सेवा करते करते, अपने लोगों को सर्व करते करते, आई फाउंड दैट आई वॉज प्रिवेंटेड फ्रॉम फुलफिलिंग माई ऑब्लिगेशन एज अ सन, a brother, a father and a husband. So now he is saying कि अपने लोगों को सर्व करते करते मैंने ये देखा कि मैं अपने एज अ फादर,
एज अ सन, एज अ ब्रदर, एज अ हस्बैंड, उसकी जो ड्यूटीज होती है, इन सारे कैरेक्टर्स की जो ड्यूटी होती है, उनको करने से रुक चुका हूँ या फिर उनको करने से मुझे रोक दिया गया है। I was not born with a hunger to be free. वो कहते हैं कि मेरा बर्थ ऐसे ही नहीं हुआ था कि पैदा होते से मुझे लग गया था कि नहीं मुझे तो फ्रीडम चाहिए, नहीं मुझे तो फ्रीडम चाहिए. It was not like that. I was born free, free in every way that I could know. So he was saying that he was free. वो free ही पैदा हुए थे. उनको ये नहीं पता था कि नहीं मुझे तो पैदा होते ही लड़ना है या फिर मुझे तो इन लोगों से लड़ना है या फिर मुझे नहीं फ्रीडम चाहिए, फ्रीडम चाहिए. जैसे ही उनका बर्थ हुआ था, ही जस्ट नो कि वो फ्री हैं. ऑलराइट, बच्चा क्या होता है? बच्चा यही तो जानता है कि ही जस्ट फ्री. वो अपने आप में खुद खुश रहता है, राइट? तभी तो वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता किसी भी चीज में. सो फ्री इन एवरी वे दैट आई कुड नो. मैं हर तरह से फ्री था जितना मैं जान पाता था. फ्री टू रन इन द फील्ड्स नियर माई मदर्स हर्ट. मैं फ्री था अपनी मदर की हट के पास में घूमने के लिए, रन करने के लिए. फ्री टू स्विम इन द क्लियर स्ट्रीम. क्लियर स्ट्रीम में स्विम करने के लिए भी फ्री था. दैट रन थ्रू माई विलेज, जो कि मेरे गांव में बहती है. फ्री टू रोस्ट मील्स अंडर द स्टार्स. रात के टाइम पे बाहर के जो एरिया होता है वहाँ पे मील्स को रोस्ट करने में भी मैं फ्री था. राइड द ब्रॉड बैक ऑफ स्लो मूविंग बुल्स. स्लो मूविंग जो बुल्स होते हैं उनके ब्रॉड बैक पर राइड करने के लिए भी वो फ्री थे. एंड एज लॉन्ग एज I obeyed my father and abided by the custom of my tribe, I was not troubled by the laws of man or God. So यहाँ पे वो कह रहे हैं कि मतलब जितना मैंने अपने फादर को, जब तक कि मैंने अपने फादर को और अपनी कम्युनिटी को, अपनी ट्राइब को ओबे किया है और उनके जो रूल्स है उनको अबाइड किया है, माना है, तब तक मैं वाइट सुप्रीमेसी के रूल से बिल्कुल ही अनजान था, बिल्कुल ही अलग था. बिकॉज उस टाइम पे वो उनके फादर की बात मानते थे, उस टाइम पे वो उनकी कम्युनिटी की बात मानते थे, तो वो बचे रहते थे, राइट? बट जैसे जैसे उन्होंने वो सब चीजें छोड़ी, मतलब अपने फादर की बात मानना छोड़ी और अपने ट्राइब्स की बात मानना छोड़ी, और जैसे उन्होंने अपनी कंट्री के लोगों को सर्व करना स्टार्ट किया, ही जस्ट wanted to know, he knew all those things which is what was going on in their country. So it was only when I began to learn that my boyhood freedom was an illusion. ये तब हुआ, मतलब उन्होंने बात मानना तब छोड़ी अपने फादर की, अपनी ट्राइब की, कि उनको पता लगा कि उनकी जो फ्रीडम है एज अ बॉयहुड, जब वो छोटे से लड़के थे तब उनकी जो फ्रीडम है दैट वाज एन इल्यूशन. वो एक सिर्फ भ्रम है, वो सिर्फ एक भ्रम में जी रहे हैं, एक इल्यूशन में जी रहे हैं. रियलिटी में फ्रीडम तो कुछ और ही होती है जो कि उनको अभी तक मिली ही नहीं थी. So now, when I discovered as a young man that my freedom had already been taken from me, that I began to hunger for it. So now, जब वो young हुए तो उनको पता लगा कि उनकी जो फ्रीडम है वो ऑलरेडी उनसे स्नैच कर ली गई है, उनसे छीन ली गई है. एंड नाउ अब उनको पता लगने लगा दैट व्हाट इज द रियल फ्रीडम, एंड नाउ ही इज स्टार्टेड फाइटिंग फॉर इट. ऑलराइट, नाउ at first as a student I wanted to freedom only for myself. When he was a student he just wanted to freedom for just himself. The transitory freedom of being able to stay out at night. Transitory freedom, उनको एक temporary freedom चाहिए थी. See, जब जो भी टीनेजर होता है, जो भी अडल्ट होता है, तो दे यूज टू थिंक लाइक कि नहीं अब हम अडल्ट हो चुके हैं, अब हम टीनेज हो चुके हैं, तो अब हमको हमारी फ्रीडम चाहिए, राइट? फ्रीडम कैसी चाहिए? हम बिना परमिशन के कहीं भी आ जा सके, कुछ भी पढ़ लिख सके, राइट? सो सिमिलरली यही चीज उनके साथ भी होती थी व्हेन ही वाज यंग. सो उनको भी ऐसा लगता था कि उनको टेम्परेरी फ्रीडम चाहिए. टेम्परेरी फ्रीडम कैसी? अकेले रहने की, नाइट आउट्स पर जाने की, उनको जो रीड उनको करना पसंद है, जो भी उनको पढ़ना पसंद है, वो सब कुछ उनको पढ़ने की. गो वेयर आई चूज, जहां कहीं भी वो जाना चाहे वहां वो जा सकते, ऐसे उनको फ्रीडम चाहिए थी. सो लेटर एज अ यंग मैन इन जॉन्सबर्ग I yearned for the basic and honorable freedom of achieving potential, of earning my keep, of marrying and having a family. So when he was in Johnsburg, so उनको फ्रीडम किस चीज़ की चाहिए थी? उनको अपने पोटेंशियल अचीव करने की चाहिए थी. इट मीन्स उनको अपना जो गोल्स है उनको अचीव करने के लिए चाहिए थी. और yearning to keep और अपनी जो सर्वाइवल है उसके लिए, पैसे कमाने के लिए उनको फ्रीडम चाहिए थी. शादी करने के लिए, फैमिली बनाने के लिए उनको फ्रीडम चाहिए थी. The freedom not to be obstructed in a lawful life. But then I slowly saw that
Not only was I not free, but my brothers and sisters were not free. Now he just realized कि मैं ही free नहीं हूँ, मेरे जो भाई बहन हैं, मतलब कि उनके जैसे ही जो black people हैं, they were also not free. So I saw that it was not just my freedom that was curtailed, but the freedom of everyone who looked like I did. So now he just understood that वही ऐसे पर्सन नहीं है जिनकी फ्रीडम को क्रूटल मतलब कि लाइक खत्म किया गया है, उनके जैसे और भी लोग हैं जिनकी फ्रीडम को खत्म किया गया है, जो उनके जैसे दिखते हैं उनकी फ्रीडम को भी खत्म किया है. दैट इज व्हेन आई जॉइंड द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस. एंड तब की बात है जब उन्होंने और तब से उन्होंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन कर लिया था, जब से उनको पता चला कि उनके जैसे और भी लोग हैं जिनके फ्रीडम्स को छीन लिया गया है. Alright, and that is when the hunger for my own freedom become the greater hunger for the freedom of my people. और तब से उनकी खुद की जो हंगर थी फ्रीडम के लिए, अब वो उनके लोगों के लिए भी बन चुकी थी. मतलब अब पहले वो खुद के लिए फ्रीडम चाहते थे, अब वो अपने कंट्री के अपने जैसे जो लोग हैं, ब्लैक पीपल है, उनके लिए भी फ्रीडम चाहते हैं. It was this desire for the freedom of my people. It was the desire for the freedom of my people to live their life with dignity and self-respect that animated my life, that transformed a frightened young man into a bold one that drove. अब नेल्सन मंडेला को कैसी फ्रीडम चाहिए थी? फ्रीडम वैसी चाहिए थी जिससे वो और उनके जैसे जो लोग हैं वो डिग्निटी के साथ और सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ रह सके. एंड उस फ्रीडम की वजह से वो कैसे हो गए थे, एक फ्राइटेंड यंग मैन, एक डरा हुआ सा जो यंग मैन था वो एक बोल्ड मैन में ट्रांसफर हो गया था. एंड दैट ड्रॉ अ लॉ अबाइडिंग अटॉर्नी. अटॉर्नी मीन्स क्या होता है? एडवोकेट. ऑलराइट, तो एक जो लॉ अबाइडिंग अटॉर्नी था, जो एक लॉ को मानने वाला अटॉर्नी था, वकील था, एडवोकेट था, वो अब एक क्रिमिनल बन चुका है. क्रिमिनल किसकी नजर में बन चुका है? व्हाइटिश पीपल की नजर में क्रिमिनल बन चुका है, बिकॉज दे वर जस्ट स्टार्टेड देयर फाइटिंग फॉर देयर राइट्स. Alright, now that turned a family-loving husband into a man without home. जिसने उस फ्रीडम की हंगर ने उसको कैसा बना दिया था? नेल्सन मंडेला को एक होमलेस पर्सन बना दिया था. एक होम लविंग पर्सन से एक होमलेस पर्सन वो बन चुके थे. That forced a life-loving man to live like a monk. उनको एक ऐसा इंसान बना दिया था जो कि एक मॉन्क की तरह रहना चाह रहा था. मतलब कि उन्होंने अपनी फैमिली को छोड़ दिया था अपनी फ्रीडम के लिए. मतलब फ्रीडम के लिए, कैसे फ्रीडम के लिए? फ्रीडम ऑफ हंगर के लिए, अपने और अपने लोगों के लिए फाइट करने के लिए उन्होंने अपनी फैमिली को छोड़ दिया था. So I'm no more virtuous or self-sacrificing than the next man, but I found that I could not even enjoy the poor and limited freedom I was allowed when I knew my people were not free. So now he is saying कि मुझे एक limited freedom नहीं चाहिए थी, जबकि मुझे पता है कि मेरे जैसे जो लोग हैं they were not even free to do what they want to do. All right, now freedom is indivisible. The chains on any one of my people were the chains on all of them. So now he is saying freedom जो है वो indivisible है, मतलब कि उसको डिवाइड नहीं किया जा सकता. If वो लोग हमको ऑपरेस कर रहे हैं, इतने सारे लोग होने के बावजूद भी, हमारे इतने सारे लोग होने के बावजूद भी हमारी जो चेन बनी हुई है, देन सेम चेन उनकी बनी हुई होगी, सेम लोग उनके साथ भी होंगे. ऑल राइट, एंड the chains of all of my people, the chains on me, I knew that the oppressor must be liberated. Now he is saying कि जैसे चेन उनकी बनी हुई है, लाइक जो हेड है उनका, उनके साथ बाकी सब लोग हैं, बाकी सब सपोर्टर्स हैं. सो he also knew well कि अगर मैं खड़ा होऊंगा तो मेरे साथ भी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो फ्रीडम ऑफ हंगर के लिए लड़ाई करेंगे. So I knew that oppressor must be liberated just as surely the oppressed. वो कहते हैं कि ऑपरेसर जो है उसको भी लाइबरेट होना चाहिए जैसे कि एक ऑपरेस्ड लाइबरेट होता है. So यहाँ पे होना चाहिए जैसे कि ऑपरेस्ड जो है वो तो अपनी फ्रीडम के लिए लड़ाई कर रहे हैं, बट कहीं ना कहीं ये जो ऑपरेसर है ना वो भी लाइबरेट नहीं है, वो भी फ्री नहीं है. वो किस तरह से फ्री नहीं है? लेट्स सी. A man who takes away another man's freedom is a prisoner of hatred. एक इंसान जो कि दूसरे इंसान की फ्रीडम को छीन लेता है वो किसका कैदी बन जाता है? वो हेटरेट का कैदी बन जाता है. उसको हर टाइम डर लगा रहता है कि कहीं ये मेरे अगेंस्ट खड़ा ना हो जाए. तो वो ऑपरेसर जो है वो कहाँ से फ्री हुआ? नहीं हुआ ना वो फ्री.
So now, and he is locked behind the bars of prejudice and narrow mindedness. अब वो क्या होता है, वो जो ऑपरेसर है जो कि दूसरों पर टॉर्चर करता है, वो नैरो माइंडनेस और डर में और प्रिजुडाइज में, मतलब बहुत सारी चीज़ों में, हेट्रेड वगैरह सारी नेगेटिविटी में वो जकड़ जाता है एंड वो हमेशा यही सोचता रहता है कि कहीं ये लोग मेरे अगेंस्ट खड़े ना हो जाए. I am not truly free if I am taking away someone else freedom. मैं फ्री नहीं हूँ अगर मैं किसी और की फ्रीडम ले रहा हूँ, then I am not free in actual way. So just as surely as I am not free when my freedom is taken from me, the oppressed and the oppressor alike are robbed of their humanity. जो ऑपरेसर होते हैं और जो ऑपरेस्ड होते हैं वो दोनों ही अपनी जो ह्यूमैनिटी है उसको रॉब करवा चुके होते हैं, उसको लुटा चुके होते हैं. बिकॉज जो ऑपरेस्ड होता है, मतलब जो टॉर्चर सहन करता है, वो भी कहीं ना कहीं अपनी ह्यूमैनिटी को लुटा चुका होता है, खो चुका होता है, क्योंकि अब उसको लड़ाई करनी होती है, राइट. बट जो ऑपरेसर होते हैं, ऑपरेसर डर में, नैरो माइंडनेस में, हेट्रेड में जकड़े रहते हैं, जिस वजह से उनके अंदर भी डर रहता है और वो भी कहीं ना कहीं किसी ना किसी वे में फ्री नहीं होते हैं. ऑलराइट, सो दिस वाज द चैप्टर लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, नेल्सन मंडेला. होप यू अंडरस्टूड इट. थैंक यू.